people, welcome to Prep Elevate. Let's deep dive into another beautiful decision making set from ZAT past year questions. Very simple, very easy. You just have to remember the ground rules for decision making. So, win win situation, no extreme actions to be taken, and no sacrificial decisions to be made. Okay? चलो देखते हैं मून लाइटिंग। ये वर्ड आपने सुना होगा काफ़ी, भी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। ये रिमोट वर्क, हाइब्रिड वर्क, मून लाइटिंग, ठीक है। मून लाइटिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ working for one organization while also accepting additional responsibilities and jobs, typically without the employer's knowledge, in another organization. So basically it's about working simultaneously for two or more organizations without them knowing that you've taken employment here and there. So this caught fire during remote working, right? तो लोगों के पास ये इंडिपेंडेंस थी और अदर टाइम था, तो वो कहाँ टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं लोगों को पता नहीं था, तो आप साइमल्टेनियसली यहाँ के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, वहाँ के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं. सो मून लाइटिंग लेट्स से इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ कोविड रिमोट वर्किंग. ठीक है, ऐसा नहीं है, पहले भी एग्जिस्ट करता था, बट इट कॉट फायर. ठीक है, it is named as such because it is typically performed at night or on the weekends. Obviously when you are not doing your regular job, तब आप additional काम करते हो, you get paid for it. So that is why a lot of people consider this to be unethical as well. So typically moonlighting क्यों बोलते हैं? So it is usually done in the late night hours, जहाँ पे आप रेगुलर ऑफिस का काम निपटा चुके होते हैं, या वीकेंड्स में जब आप ऑफिस से छुट्टी पर होते हो. Doing two remote jobs at once was already happening. It was the biggest open secret out there in tech, said a US techie. Like I mentioned, हो रहा था, हमेशा से ही था, but recently बहुत ज़्यादा लाइट में है. बिगेस्ट ओपन सीक्रेट, सबको पता है इस बारे में, ओपन सीक्रेट. Due to weaker margins, major Indian IT companies such as Infosys, TCS, and Wipro announced that they would delay, postpone, or reduce variable payouts to employees for the first quarter of fiscal year 23. This due attention to moonlighting. So Indian scenario में क्या हुआ, जो major IT giants हैं उन्होंने announce किया कि they would either delay or reduce the variable pay or postpone the variable pay for the first quarter of fiscal year 23, and this drew attention to moonlighting. So let's say जैसे लोगों के पे स्केल पर इफेक्ट हुआ, उन लोगों ने वो टाइम कहीं और यूटिलाइज करना चालू कर दिया, एंड दैट इज हाउ थिंग्स केम टू लाइट, और प्रॉब्ली it was a burning topic. The Indian IT industry was divided on the issue of moonlighting. अब काफी ओपिनियन सामने आने लगे. Some considered it unethical, कुछ लोगों को unethical लग रहा था, while others viewed it as an urgent necessity. Necessity why? Because if you depend on only one organization to fulfill all your monetary and financial needs, and for some reason the organization is not performing well, they are unable to give you the payout promised for some genuine reason, of course, then you always have to have other sources of income available to you, right? So that is why a lot of people felt that it was an urgent necessity. Okay, you should have multiple sources of income as per them. And there was another segment which said it's unethical, you can't work for multiple employers simultaneously. Infosys chairman Patrick's stance on this matter was crystal clear. So opinions के बारे में बात हो रही है. There is a great deal of talk about people working part-time in the tech industry. This is cheating, pure and simple. Very, very blunt opinion, very straightforward, crystal clear, that as per him, Chairman Patrick, he feels that this is cheating, unethical, totally unethical. You can't work for two companies simultaneously. Okay? You have to just stick to one company that you're employed for and work for them. However, Macmillan, CEO of Beta Universe, so contradicting opinion होगा, does not consider moonlighting as cheating. उनको क्या लगता है? Employment is a contract between an employer who pays me for working n number of hours per day. He explained. Now, what I do after that time is entirely up to me. I can do whatever I please. So, Mr. Macmillan feels that employment is a contract between employee and employer, that okay, you have to work for me for a certain number of hours per day, and that is how I'm going to give you your payment, your salary, your payout. Now, beyond those working hours, what I do is totally up to me. So it is totally up to the employee how they decide to utilize those hours. So they could choose to work for another company as long as they are not
like ignoring the needs of the company that they are employed with. They are not, like running away from the responsibilities. He feels it's quite fine. Okay, you can't keep them imprisoned, or you can't keep your employees imprisoned forever and ever. That is not right. Certain number of hours they're going to work for you, they're going to work with dedication and sincerity. Post that, what they do is totally their choice. ठीक है, two contradictory opinions, सिंपल पैसेज है राइट, मूनलाइटिंग के ऊपर पैसेज है, वर्ड्स इजी हैं, कॉन्ट्रडिक्टिंग ओपिनियंस है. देखते हैं क्वेश्चंस क्या है. Which of the following options will have the least negative consequence on moonlighting employees? Least negative को अगर ट्रांसलेट करना है दैट मीन्स मोस्ट पॉजिटिव. सबसे ज्यादा कम नेगेटिव मतलब सबसे ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट मूनलाइटिंग एम्प्लॉयज पे. मूनलाइटिंग एम्प्लॉयज को क्या ऐसा होगा कि वो उन्हें सबसे ज्यादा फेवर करे? कौन सा सिनेरियो उन्हें सबसे ज्यादा फेवर करेगा? ठीक है, एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस मे बी एडवर्सली अफेक्टेड बिकॉज ऑफ ओवरवर्किंग. तो क्या उन्हें फेवर करेगा ये अगर उनका परफॉर्मेंस इंपैक्ट हुआ ओवरवर्किंग की वजह से? ऑब्वियसली व्हेन यू वर्क फॉर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस यू आर ओवरवर्किंग राइट, या लाइक वर्किंग लाइक सेगमेंटेड वर्किंग यू आर डूइंग. तो अगर उनका परफॉर्मेंस इंपैक्ट होगा, क्या उन्हें सबसे ज्यादा वो चीज फेवर करेगा? नो. तो ये तो नहीं होगा. इंक्रीज्ड फैमिली प्रॉब्लम्स बिकॉज एम्प्लॉयज विल नॉट स्पेंड क्वालिटी टाइम एट होम. ये आपने कभी ना कभी तो फेस किया होगा या देखा होगा या सुना होगा कि बहुत ज़्यादा अगर आप प्रोफेशनली इन्वेस्टेड हो, योर पर्सनल लाइफ टेक्स अ हिट. सो फैमिली प्रॉब्लम्स, no communication, not spending quality time with your family, all of these lead to a lot of personal life domestic issues. तो क्या ये फेवर करेगा मूनलाइटिंग एम्प्लॉयज को? नहीं करेगा. Employer reducing daily working hours from 8 to 6. That is really great. अगर वर्किंग आवर्स रिड्यूस हो जाए मेरे, तो मैं बाकी चीज़ों को टाइम दे पाऊंगा जो मुझे करना है एज पर मूनलाइटिंग. मुझे बाकी चीज़ों को भी टाइम देना है. तो अगर जो मेरा रेगुलर एम्प्लॉयर है, इफ ही और शी डिसाइड्स टू रिड्यूस माय वर्किंग आवर्स फ्रॉम 8 to 6, मैं बाकी चीज़ों को टाइम दे पाऊंगा. क्या ये मुझे फेवर करेगा? क्या ये लीस्ट नेगेटिव एंड हेंस मोस्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट है? यस है. मतलब पॉजिटिव तो है, मोस्ट पॉजिटिव की नहीं, वो बाकी दो ऑप्शंस पढ़ के देखेंगे. और ये लाइन पढ़ के तो सारे कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज के फेस पे बहुत ज़्यादा एक स्माइल आ गई होगी, कि इफ दिस वाज ट्रू. ठीक है, कि 8 आवर्स से 6 आवर्स वर्क करना है मुझे. ठीक है, अभी देखते हैं. पुअर फिजिकल हेल्थ ऑफ एम्प्लॉयज बिकॉज ऑफ एक्सेस वर्क. क्या ये फेवर करेगा? नहीं करेगा. एक्सेसिव वर्क की वजह से इफ योर हेल्थ टेक्स अ हिट, इट इज नॉट गोइंग टू फेवर यू. और देखते हैं, एम्प्लॉयर रिड्यूसिंग सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज बिकॉज ऑफ मूनलाइटिंग. ये तो डेफिनेटली फेवर नहीं करेगा कि अच्छा आपको मूनलाइटिंग करना है, मैं आपके पैसे घटा देता हूँ, आपको दूसरी जगह से तो पैसे आ ही रहे. ये नहीं था ना एजेंडा, वही तो हम कवर अप करने की कोशिश कर रहे थे. तो ये तो नहीं होगा. तो लीस्ट नेगेटिव एंड हेंस मोस्ट पॉजिटिव क्या है कि आप मेरे वर्किंग आवर्स रिड्यूस कर दो ताकि जैसा चल रहा है वैसा मैं चला सकूँ आराम से. ठीक है, तो ये है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर. ईजी है क्वेश्चन. ठीक है, बस वो वर्ड को समझना है, लीस्ट नेगेटिव एंड हेंस मोस्ट पॉजिटिव. ठीक है, अच्छा ये देखते हैं. ये पढ़ने में बहुत बड़ा लग रहा है. देखो पूरा स्क्रीन कवर हो गया, काफ़ी ज़्यादा लेंदी लग रहा है. तो होते हैं कुछ क्वेश्चंस लेंदी भी होते हैं, डज नॉट मीन डिफिकल्ट होता है, लेंदी होता है. पेशेंटली पढ़ना है. जैट का सबसे अच्छा चीज़ क्या है पता है? कि टाइम प्रेशर नहीं होता, आप आराम से टाइम लेकर पढ़ सकते हो. एंड हेंस डोंट शाई अवे फ्रॉम लेंदी क्वेश्चंस. ये कैट नहीं है कि सेक्शनल टाइम लिमिट सेट है तो रश करना है, ऐसे करना है. नो, डोंट डू दैट. आराम से टाइम लेकर क्वेश्चंस को पढ़ो. ठीक है. Mr. Q is an IT professional who works for a small company in Bangalore. His office hours are from 2 to 10. Okay. Bangalore guy, IT guy, 2 to 10 he works. Thus he wants to utilize his morning time. अच्छा, 2 to 10 working hours है. ठीक है, ऐसे होते हैं ना working hours when you work for Canadian firms. UK timings जो होते हैं, it starts late in the afternoon, ends late at night. Morning hours उनके पास है जो वो utilize करना चाहते हैं. He thought of taking up extra work. However, he is not sure about the righteousness of his decision. Ethical dilemma. कि क्या ये सही होगा अगर मैं किसी और के लिए भी काम करूं? क्या ये सही होगा? Righteousness is always ethical dilemma, moral dilemma. ठीक है? His company does not have any clear policy on moonlighting. Okay, company का as such अभी तक तो moonlighting पे ऐसा कोई clear policy नहीं है कि अगर कोई moonlighting करता हुआ पकड़ा है तो हम ये action लेंगे, या we don't encourage, we don't allow, or we are flexible that way. ऐसा कुछ भी नहीं है. No clear policy. As he is confused, he seeks opinions of the people who work in his industry to understand ethical dimension of moonlighting. अब उन्हें समझना है कि
क्या एथिकल डिमेंशन है मून लाइटिंग का, सही है एथिकली, नहीं सही है। तो जब हमें खुद आंसर नहीं समझ में आता, हम क्या करते हैं, हमारे जो प्रोफेशनल यूजुअली हम क्या करते हैं, जो हमारे इंडस्ट्री के लोग हैं, हम उनसे कंसल्ट करते हैं कि उनका ओपिनियन इस बारे में क्या है। तो 5 ओपिनियंस हमें दिए गए हैं और अब हम देखते हैं क्या ओपिनियंस है। मून लाइटिंग इज अनएक्सेप्टेबल सिंस एम्प्लॉयर हैज अ कंप्लीट राइट ओवर द एम्प्लॉय। ऑप्शन 1 मून लाइटिंग को एनकरेज नहीं कर रहा है, वो बोल रहा है कि ये अनएथिकल है, अनएक्सेप्टेबल है, बिकॉज जिसने आपको हायर किया है उसका आप पे कंप्लीट राइट है, आप कहीं और अपने सर्विसेज नहीं दे सकते। ठीक है। ओपिनियन 2, moonlighting is a choice of the employee and that the employer has no authority over the employee's conduct after office hours. So this is very similar to what Macmillan had said in the passage कि after office hours what the employee is doing is totally out of ambit of the employer. हमारा काम तो सफर नहीं हो रहा ना, तो 2 to 10 आप वहाँ इन्वेस्टेड रहो, उसके पहले उसके बाद आप क्या कर रहे हो, it is totally up to you. It's the choice of the employee and employer actually has nothing to do with it. Okay. ओपिनियन 3 क्या है, तो ओपिनियन 1 सपोर्ट नहीं कर रहा है मून लाइटिंग को, ओपिनियन 2 कर रहा है। अब देखते हैं, मून लाइटिंग लीड्स टू एम्प्लॉय मिसिंग आउट ऑन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल वर्क। ओके, तो अभी ये हमें कॉन्सिक्वेंसेस बता रहे हैं कि इफ अ पर्सन मून लाइट्स, इफ एन एम्प्लॉय मून लाइट्स, तो क्या होता है ना, इट लीड्स टू द एम्प्लॉय मिसिंग आउट ऑन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल इन्फॉर्मेशन। ऑफ कोर्स नोबडी इज बोर्न विद द एबिलिटी टू मल्टीटास्क। आपका अटेंशन स्पैन जैसे ही डिवाइड होता है, इधर उधर जाता है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट you'll not be able to capture everything efficiently। तो ये चांसेस रहता है कि while you are multitasking तो कुछ आप मिस आउट कर जाओ। ठीक है, ये इम्पैक्ट है मूनलाइटिंग का। ओपिनियन 4 क्या है, while moonlighting the employee might unknowingly leak critical information gained from one organization to the other। अच्छा, तो ये भी एक ओपिनियन है कि मूनलाइटिंग करते वक्त ना ऐसा हो सकता है कि इंटेंशनली नहीं बट अनइंटेंशनली आपने कोई इंफॉर्मेशन यहाँ से वहां कर दी। ठीक है, एंड दैट इज ऑब्वियसली ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, आप ऐसा नहीं कर सकते, देयर आर कॉन्फिडेंशियलिटी रूल्स इन प्लेस। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। तो क्या होता है ना कि लेट्स से आप आईटी के यू आर आईटी प्रोफेशनल, तो आप मून लाइटिंग अपने सिमिलर इंडस्ट्री में करोगे ना, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है दैट यू आर एंगेजिंग विद डिफरेंट क्लाइंट्स, दे आर कनेक्टेड समहाउ, यू आर वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट्स एंड कुछ प्रोजेक्ट का कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन आपने गलती से वहां लीक कर दिया। ठीक है, ऐसा होता है कभी कभी। तो ओपिनियन 4 हमें वही बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। तो ये 3 और 4 इम्पैक्ट को डिस्कस कर रहे हैं। ओपिनियन 1 एंड 2 ए फेवर नहीं करता मून लाइटिंग को, लाइक ओपिनियन 1, और ओपिनियन 2 फेवर करता है मून लाइटिंग को। ओपिनियन 5, इट इज ओके टू मून लाइट एज एम्प्लॉयर्स आर एक्सप्लॉयटेटिव एंड अंडरपे एम्प्लॉयज। ये एक बहुत ही क्रिटिकल एंड बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड ओपिनियन है, आई वुड से, बिकॉज इट इज clearly stating that employers are exploitative। ये काइंड ऑफ जनरलाइज कर दे रहा है कि ठीक है आप मूनलाइटिंग करो, रीजन क्या है, ये सारे एम्प्लॉयर्स ही तो एक्सप्लॉइट करते हैं हमें, दे अंडर पे अस, तो हमें कहीं से तो अपना मॉनिटरी बेनिफिट चाहिए ना। तो अगर हम कर भी रहे हैं कहीं और काम एंड इवन इफ यू आर स्लाइटली अनएथिकल दैट वे, तो क्या फर्क पड़ता है, हमें भी तो कोई एक्सप्लॉइट ही कर रहा है ना। सो दे आर नॉट बीइंग ट्रू टू अस, वी डोंट नीड टू बी ट्रू टू देम। तो ठीक है, मूनलाइट करना सही है। तो ये 5 ओपिनियंस। क्वेश्चन क्या है, given the above mentioned opinions, which of the following combinations will best help Mr. Q to realize that moonlighting is unethical? moonlighting unethical है ऐसा मिस्टर क्यू को अगर रियलाइज करना है तो कौन से ओपिनियंस इसको रियलाइज करने में हेल्प करते हैं? ऑब्वियसली द वंस दैट गो अगेंस्ट मूनलाइटिंग। तो विच वन वेंट अगेंस्ट मूनलाइटिंग? ऑप्शन 1 वेंट अगेंस्ट मूनलाइटिंग। ठीक है, और क्या हो सकता है, हमें कॉम्बिनेशन में जज करना है। ठीक है, देखो 2-2 का कॉम्बिनेशन है, तो बेस्ट हेल्प मिस्टर क्यू, तो हमें 2 स्ट्रॉन्ग ऐसे रीजंस ढूंढने पड़ेंगे जो हमें बताए मिस्टर क्यू को कि ये अनएथिकल है। अब देखो, अगर मैं सिर्फ ये बोलूं कि यू डोंट डू दिस, दिस इज नॉट राइट, ये एक वे है। दूसरा वे क्या है, यू डोंट डू दिस, दिस इज नॉट राइट बिकॉज सो एंड सो। ठीक है, तो एक होता है ओपिनियन स्टेट करना, एक होता है रीजन के साथ ओपिनियन स्टेट करना। जब आप रीजन के साथ ओपिनियन स्टेट करते हो, इट ब्रिंग्स वेट टू योर ओपिनियन। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 और 2 ओपिनियंस है, बट 3 और 4 अगर मैं देखूं ना, तो वो रीजन के साथ है कि मूनलाइटिंग एक्चुअली अनएथिकल क्यों है। एक, आप कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक कर सकते हो अनइंटेंशनली, और दूसरा कि आप
मिस आउट कर जाते हो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन में, ठीक है। और बाकी जो 1, 2 एंड 5 है ना, दे आर ओपिनियंस विदाउट वेरी स्ट्रॉन्ग सॉलिड एविडेंसेस। तो अगर मैं कॉम्बिनेशन के हिसाब से देखूं तो आई फील ओपिनियन 3 एंड 4 आर दी स्ट्रॉन्गेस्ट। तो ये मिस्टर क्यू को बताएगा कि अगर अनएथिकल है, हमें एस्टैब्लिश करना है अनएथिकल है, तो उसका रीजंस क्या है कि आप अनइंटेंशनली इंफॉर्मेशन लीक आउट कर सकते हो दूसरे पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स को, जो ऑब्वियसली आपके कंपेटिटर है इंडस्ट्री में, और दूसरा कि आप मिस आउट कर सकते हो इंफॉर्मेशन अपने ऑर्गेनाइजेशन का, यू आर कंटिन्यूसली मल्टीटास्किंग, राइट। तो वहां पे भी वो एक लॉस है फिर आपके एम्प्लॉयर, ठीक है। तो दिस आई वुड से स्लाइटली कंफ्यूजिंग में भी, अगर आप कॉम्बिनेशंस में देखो तो क्या सीखा हमने यहाँ से, ओपिनियंस विदाउट स्ट्रॉन्ग रीजंस आर जस्ट ओपिनियंस। तो हमें अगर ऐसा क्वेश्चन है ना कि बेस्ट एले, यू नो लाइक बेस्ट विल हेल्प देम बेस्ट रियलाइज, तो ऐसे क्वेश्चंस में जनरली हम रीजंस को ढूंढने की कोशिश करते हैं अगर वो एग्जिस्ट करता है तो उस पैसेज में, और वो हमेशा हमारा बेस्ट चॉइस होता है, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।